हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्क बुक यूनिट 2.5 द हैप्पी प्रिंस का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था और इस वीडियो में हम पार्ट सेकेंड स्टडी करेंगे। उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, संजीता रॉय। बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट एंड होम मेकर हूँ। नाउ कमिंग टू द टॉपिक चिल्ड्रन, वी हैव स्टडीड अबाउट द हैप्पी प्रिंस। उसके बारे में शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। दिस इज अ टचिंग स्टोरी अबाउट द स्टैच्यू ऑफ अ हैप्पी प्रिंस एंड द swallow. It shows the strength of love, compassion, generosity and friendship and the rewards. हमने ट्रू और फॉल्स तक हम लोग ने स्टडी किया था, उसके आंसर्स डिस्कस किए थे। अभी नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट इज ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन सेकेंड, the happy prince saw that the swallow was crying. So this statement is false. What is the correct statement? The swallow saw that the happy prince was crying. Next is the swallow felt sorry for the happy prince. It's true. Then next, complete the following. Complete the following. Fill-ups are given. You have to complete it. The Happy Prince statue was located high above the city. The drops that fell on the swallow were the tears from the eyes of the Happy Prince. Third, fill-up दिया है. That is, the swallow decided to stay under the statue of the Happy Prince at night because it was high up and so there was plenty of fresh air. अभी प्रिंस क्यों सैड था? द प्रिंस वॉज सैड. वाई? टू सी ऑल द अनहैप्पीनेस ऑफ द सिटी. नेक्स्ट, द फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ग्रेट रेड ज्वेल फ्रॉम हिज वेस्ट. अभी क्वेश्चन 6 में भी फिलअप्स है, 7 में भी फिलअप्स दिया है, 8, 9, 10 that also fill-ups and answers are given below that you can copy by phrasing this slide. Coming to the question number 11, the swallow refused to take off the other eye because then the prince would not be able to see. अगर उसने दूसरा भी अगर आए उसको किसी को गिफ्ट देना चाह तो प्रिंस देख नहीं सकता था. दैट इज वाई द swallow, that bird, refused to take off the other eye. Now coming to the question 11. The prince gave one of the two gemstones of his eyes to. किसको दिया था? जो 2 stones दिए थे उसमें से a poor little girl whose eggs had fallen to the ground and broken. Next is that, see, homophones. We have studied in the last lecture homophones. This pronunciation will be the what? Same, but the meaning will be what? Different. Spelling will be what? Different. तो यहाँ पे आपको सी होमोफोन्स एक सिंगल लाइन में, ये दोनों होमोफोन्स आपको सिंगल लाइन में, ये दोनों वर्ड आपको सिंगल लाइन में क्या करना है? यूज करना है. तो sentence is, correct sentence is that the children went all the way from Indore to Mumbai to see the sea. सी देखना है, सी ये समुंदर है. नाउ पिक आउट द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब in the following statement. And he decided to fly away. The student, we have studied that verb in the last lecture. जो फर्स्ट पार्ट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए. अभी यहाँ पे डिसाइडेड इज फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब मीन्स व्हाट? अकॉर्डिंग टू दैट टेंसेस. इफ टेंसेस आर चेंजिंग तो क्या होगा? उसका जो वर्ब है वो भी चेंज होगा. तो यहाँ पे क्या है? पास्ट टेंस यूज किया है, इसके लिए डिसाइडेड, ये वर्ब चेंज होता है. बट to fly, a non-finite verb means according to the sentence, according to the tense, ये verb change नहीं होता है. That is why it is non-finite verb. Next is what? Personal response question. Personal response question, that are your views, your comment. Have you ever observed statues and admired them? Name some. अभी कोई ऐसे statues है जो आपको अच्छे लगते हैं या आपने ऑब्जर्व किया है, उसके बारे में आप बताइए. सो आंसर इज दैट, एज आई टोल्ड अर्लियर इन अर्लियर लेक्चर्स, कि पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का आंसर अपने प्रिसाइज देना है और
वहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये आपको स्टडी करना चाहिए, ये आपको लर्न करना चाहिए। अदर्स क्वेश्चन आंसर यू कैन गेट फ्रॉम द पैसेज, बट पर्टिकुलरली पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर, that is your ways. You have to construct in your words, you have to construct in a correct manner. That's the answer. Now my correct answer is, I admire statues which are artistic or tell us a story. For example, some of the statues of Shivaji Maharaj are very well carved with all the details. However, most of the time statues in India are neglected and only serve as resting places for birds. यहाँ पे नेक्स्ट है गिव रीजन, ये आप कॉपी कर सकते हो वो अपने वर्कबुक में। द मदर वॉज फोर्स टू इग्नोर हर एलिंग सन। आंसर, द मदर वॉज फोर्स टू इग्नोर हर एलिंग सन as she did not have money to buy food and could only give him water from the river. She was busy making a dress for one of the queen's ladies. After doing time, she was so tired that she fell asleep. अभी नेक्स्ट रीजन गिव रीजन है, व्हाट वाज द फर्स्ट टास्क गिवन टू द स्वैलो। हैप्पी प्रिंस ने क्या दिया था फर्स्ट टास्क उसको, स्वैलो को। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू टेक द ग्रेट रेड ज्वेल फ्रॉम हिज वेस्ट एंड गिव इट टू अ पुअर वुमन whose son was ill and hungry. This was the swallow's first task. फर्स्ट टास्क क्या था जो उन्होंने हैप्पी प्रिंस ने बोला था, मेरे वेस्ट से कमर से जो भी रेड ज्वेल है वो उस पुअर वुमन को जाके दे जिसका बेटा क्या है, बीमार है, जिसका बेटा क्या है, हंग्री है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वैलो विश टू गो टू इजिप्ट। इट क्या रीजन था कि उसको इजिप्ट में जाना था? इट वॉज विंटर एंड इट वुड soon begin snowing. The swallow would not be able to bear this cold weather. So he wished to go to Egypt when the sun was warm and the leaves were green. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था, ये कौन है, माइग्रेटरी बर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन वो क्या करते हैं, दूसरों देशों में जाते रहते हैं। तो उसे स्वैलो को वापस जाना था। नेक्स्ट is homophones. Children, we have studied in the first part, in the first lecture of this. Red, red. Homophone sounding is same. Through, through. Now coming to the next question, that is noun form. Poor का noun form क्या होगा? Poverty. Flu, flight. Warm, warmth. Ill, illness. Now coming to the complex factual activities. One more thing before that, I would like to tell you, I would like to ask you students, आपको जो भी ग्रामर के टॉपिक्स पर्टिकुलर है जो आपको लगता है डिफिकल्ट है आपके आपकी तरफ से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन से टॉपिक आप मेरे द्वारा सीखना चाहोगे। Now coming to the next question, why was the writer unable to complete his story? The writer was very cold, weak and hungry. There was no fire in his room. Due to all these reasons, he was unable to complete his story. उसके पास में चिल्ड्रन जो फॉरेन कंट्री में क्या आइस फॉल होता है, स्नोफॉल होता है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा जरूरत किसकी रहती है, वार्म की। लेकिन बेसिक कंडीशन वहां पे रूम में नहीं थी, इसके लिए राइटर वॉज अनेबल टू कंप्लीट हिज स्टोरी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट डिड द राइटर कंक्लूड व्हेन ही सॉ द ब्लू ज्वेल? When the writer saw the blue jewel, he concluded that it was a gift from someone who had read and liked his books. उसे तो लगा किसी ने उसे गिफ्ट भेजा है, लेकिन वो हकीकत में किसने भेजा था? द हैप्पी प्रिंस ने भेजा था। कौन उसका मैसेंजर था वहां पे? दो स्वैलो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट,
रिराइट एज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, जो नेगेटिव है आपको क्या करना है, पॉजिटिव, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है. बट ही इज वेरी कोल्ड एंड ही कैन नॉट राइट, तो कैन नॉट के बदले में हमें क्या यूज करना है, अनेबल, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी द वर्ड सेम. बट ही इज वेरी कोल्ड एंड ही इज अनेबल टू राइट. Okay, now next is personal response. Have you seen birds migrating, flying in groups or information? दे दो. तो yes, I have. I did not realize what it meant in the beginning, but later I saw a documentary film about migratory birds. I like the way they fly in a formation, all of them flying at the same speed. I often wonder how they know where to go and what to do. This is your personal views. अभी हु सेड टू whom है, उसके आंसर्स नीचे दिए है, आप वो कॉपी कर सकते हो. अभी आते हैं डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर. कंपैरेटिव में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं ई आर. सुपरलेटिव EST. स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस. ब्यूटीफुल, some other words are there, some other positive words, degree is there, उसको क्या हम लोग ऐड करते हैं, मोर. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. डियर, डियरर, डियरेस्ट. वंडरफुल, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल. अभी नेक्स्ट पार्ट आता है अंडरलाइन द प्रोनाउन. प्रोनाउन यू नो चिल्ड्रन, इंस्टेड ऑफ नेम द वर्ड इज यूज, दैट इज प्रोनाउन. अभी जहां पे हम लोग बार बार किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, तो उसके बदले में अगर गर्ल है तो हम लोग शी यूज करते हैं, बॉय है तो ही यूज करते हैं, और दोनों कुछ भी नहीं है तो क्या किसी वस्तु और तो क्या करते हैं, इट यूज करते हैं. तो शी इज सेलिंग एग्स, हर एग्स हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड दे आर ब्रोकन. तो यहाँ पे क्या है, शी, हर, दे, ये क्या है, प्रोनाउन है, तो उसे हमें अंडरलाइन करना है. चिल्ड्रन प्लीज कीप इन माइंड, इफ इट इज पर्टिकुलरली मेंशन, अंडरलाइन द प्रोनाउन. तो आपको क्या करना है, ओ स्टेटमेंट को वहां पे आपको रिराइट करना पड़ेगा और उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा. प्लीज अंडरस्टैंड, पिक आउट बोला है तो यू कैन राइट ओनली वर्ड्स, बट इफ इट इज पर्टिकुलरली मेंशन, अंडरलाइन, तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को रिराइट करना है. वैसे ही यहाँ पे है, कौन से वर्ड ये है, प्रोनाउन है. आई इज देयर, यू इज देयर, ही इज देयर, ये सेकेंड सेंटेंस में प्रोनाउन है. Now again coming to the personal response question, how does the suffering of other people affect you? किसी दूसरे के दुख को देख के हमें क्या फील होता है, वो कैसे पीपल को, हम लोग को कैसे क्या करता है, अफेक्ट करता है. सो ये मेरा पर्सनल रिस्पॉन्स, ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स रहेगा. आई फील वेरी बैड when I see someone suffering. I don't like to see even animals suffer, and I often have fights with boys who are cruel to animals. If I see someone suffering, I try to help them if it is possible. I plan to become a doctor when I grow up so that I can help those who are in pain. तो ये आपको सही तरह से प्रेजेंट करना है, सही तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करना है और लिखना है. यहाँ पे भी हु सेड टू होम दिया है, वो आप लिख सकते हो, फ्रीज करके स्क्रीन आप कॉपी कर सकते हो. Now next is complex factual activity. Describe the suffering that the swallow discovered and reported the prince. ये आप कॉपी कर सकते हो. Now next is, in what state did the important man in the city find the statue? ये एंडिंग में दिया हुआ है अपने लेसन का. 2.5 The Happy Prince. The important man in the city found the statue looking dull. The red stone and the gemstones of the eyes had disappeared. The statue was not golden any longer and looked like that of a beggar. There was also a dead swallow at the feet of the statue. आपको तो स्टोरी का एंड पता है, जो भी था उसके पास द हैप्पी प्रिंस के पास, उसने क्या किया था, दूसरों को दिया था. किसके थ्रू दिया था, स्वैलो के थ्रू. Now coming to the next one. Why did the servants of God take the broken heart and the dead bird to God? Because
क्या था कारण? दे वर द टू बेस्ट थिंग्स इन द सिटी। कितने जनरस थे, कितने कंपैशनेट थे, कितने एक दूसरे से लॉयल थे। कौन? द हैप्पी प्रिंस और स्वैलो। Why did the swallow finally decide not to leave the prince? जैसे पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया था, because he loved him very much. Swallow loved who? That happy prince. इसीलिए वो छोड़ के उसने डिसाइड किया कि मैं प्रिंस को छोड़ के नहीं जाऊंगा. What decision did the swallow finally make? Was it a wise one? Comment. तो उसने जो डिसीजन लिया था, क्या वो सही था? This is your views. You have to comment on this statement. So answer is, the swallow finally decided not to go to Egypt but to remain with the happy prince whom he loved very much. ये डिसीजन लिया था. इट मे नॉट हैव बीन अ वाइज डिसीजन. प्रैक्टिकली शायद ये सही नहीं रहेगा, बिकॉज इट लेड टू द डेथ ऑफ द swallow, but it was a decision made from the heart and was an emotional decision which was rewarded in heaven. शायद ये प्रैक्टिकली डिसीजन नहीं था. क्यों? एट द एंड क्या हुआ? स्वैलो का डेथ हो गया. लेकिन वो डिसीजन कैसे लिया गया था? मेड फ्रॉम द हार्ट. और उसका ही उसको रिवॉर्ड मिल गया, जहां से उसको क्या मिला? हेवन में जाने को मिला, हेवन मिला ना. व्हाट डू यू थिंक वाज द पार्ट ऑफ द स्टैचू विच डिड नॉट मेल्ट? तो आंसर क्या है? जो पार्ट स्टैचू का मेल्ट नहीं हुआ, वो क्या था? हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. नाउ what message do you get from this story? This also we have to what? Write your own views. What you learn from this story, what message you got from this story, that you have to write in the form of answer. The message that we get from the story is that we should be loyal, generous and compassionate. We will not only get peace when on earth, but will also get appreciation and reward in heaven. Now do as directed. यहाँ पे टू कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन आपको फाइंड आउट करने को बोला है. Children, you know two compounds words, bedroom and daytime. What is compound word? When two words are used together and do the word noun or an adjective, तो क्या होता है? कंपाउंड वर्ड. यहाँ पे देख लीजिए, बेड एंड रूम. बेडरूम को क्या किया है? ज्वाइन किया है. डे और टाइम दोनों को क्या है? ज्वाइन किया है. तो ये ऐसे ज्वाइन करके ये टू कंपाउंड वर्ड्स फ्रेम हुए, बेडरूम एंड डे टाइम. अभी नेक्स्ट है, फ्रेज को यूज करना है टू गेट इन. कहाँ पे? सेंटेंस में. तो आंसर इज, द थीफ फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट इन थ्रू द नैरो ओपनिंग. यहाँ पे अगेन अंडरलाइन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, और उसका आपको क्या करना है? टाइप लिखना है. तो क्राइंग क्या है और उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो लिखना है. अभी फ्लावर हिडन वर्ड्स आपको क्या करना है? वहां से ही जो 4 हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड से लिखना है. फ्ला, लोअर, लो, बुल, ओ, ये वर्ड से 4 लिखना है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, होमोफोन्स, जो यहाँ पे सिंगल सेंटेंस में यूज करना है. Next is what? Rewrite using the clause in clause of the underlined phrase. तो ये clauses को कैसे यूज किया देखिए. I played with my friends in a very beautiful garden. तो I played with my friends in a garden, उसको कैसे clause में? Which was very beautiful. ये उसको ऐड करके, विच से ए करके कंबाइन करके एक यूज करके उसको क्या है? क्लॉजेस में कन्वर्ट किया है. नाउ कमिंग टू द एफर्मेटिव, रीराइट एज एन एफर्मेटिव सेंटेंस. आई डिड नॉट नो के बदले में इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट इज यूज? आई वाज अनअवेयर. Next is punctuation. Punctuations are given that you copy correctly. Now students, we are coming to the question number 9. Pick out the model auxiliary and state its function. Sentence is, I must find another place. Here you have to identify model auxiliary. Last lecture में मैंने आपको बताया था what is model auxiliary? Must, could, should.
Here in this sentence, must is modal auxiliary and that indicates function of compulsion. Now coming to the last one, identify the type of sentence. Tell me what you see there. Now, type of sentence, you know this is imperative. Imperative, that is order, request, command. So tell me what you see there. This kind of the sentence, this is imperative sentence. Now students, we are coming to the end of this lecture. अगर आप किसी ग्रामर के टॉपिक में आप सीखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में दोज पर्टिकुलर ग्रामर टॉपिक्स यू कैन मेंशन. अभी और ये जो भी अभी हम लोग ने दो पार्ट में स्टैंडर्ड 8 का 2.5 द हैप्पी प्रिंस जो कंप्लीट किया है वो आप आपके वर्कबुक में सब नोट्स कंप्लीट करके रखिए और नेक्स्ट टाइम ऐसे ही बहुत सारे ग्रामर रिलेटेड टॉपिक भी लेके हम आएंगे. सो बाय बाय चिल्ड्रन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर.